Good morning, students of class ninth. In the previous video, we have discussed about the Central Highlands and the Deccan Plateau. And in today's video, we are going to discuss about the Western Ghats and the Eastern Ghats. Okay, so let us start the video, and later we will discuss about coastal plains, Western coastal plains, Eastern coastal plains, and so on. Okay, so first of all, let us understand what are the Western Ghats and what are the Eastern Ghats. देखिए, इंडिया का जो हमारा बाउंड्री है, इट इज सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम थ्री साइड्स. ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं और अब तो आपको याद भी हो गया होगा, आई होप, कि इस साइड है हमारा अरेबियन सी, इस साइड है हमारा अरेबियन सी, इस साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल, एंड दिस साइड इज अवर इंडियन ओशन. एंड एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम श्रीलंका है, वो भी इस साइड पड़ता है. राइट, नाउ इफ वी विल go direction wise, so it is north, it is south, it is west, and it is east. Okay, and this was the reason for our Deccan Plateau basically. And with the Deccan Plateau, on the western side, ये west है हमारा, on the western side we have the Western Ghats, and on the eastern sides we have the Eastern Ghats. And they are said that Western Ghats and Eastern Ghats are parallel to the वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड द ईस्टर्न कोस्ट लाइन. कोस्ट लाइन वो एरिया जहां पर इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो वाटर बाउंड्री से मिलती है. राइट, सो इट इज द लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड इट इज द कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट लाइन, एंड द वेस्टर्न घाट्स आर जस्ट पैरेलल टू द western coastline and the eastern ghats are just parallel to the eastern coastline. Okay, see, the Western Ghats lies continuous and parallel to the western coast of India along the Arabian Sea. क्योंकि वेस्ट साइड पर अरेबियन सी है तो वेस्टर्न कोस्ट लाइन भी अरेबियन सी के पास ही होगी. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर विद एन एलिवेशन ऑफ 900 टू 1600 मीटर. राइट, जो वेस्टर्न घाट्स हैं, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैं लिखवाता हूं हर एक वीडियो में, ये भी आप लिखते चलिए. वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है that is 600 meter to sorry 900 meter to 1600 meters. right, लाइन कितनी है 900 meter to 1600 meters. वेस्टर्न घाट्स की हाइट है ये. अनामुदी is the highest peak of the western ghats followed by the Doda Beta. Right, the highest is the Anamudi, Anamudi. Anamudi is the highest peak. Of the Western Ghats, and after that it is Doda Beta. These regions are close to the famous hill station of Ooty in Tamil Nadu. Since the monsoon winds blow from the Arabian Sea into the Indian mainland, the Western Ghats receive more rainfall as compared to the Eastern Ghats. Right, अब Western Ghats हमारे इधर की साइड है, and we know that the monsoon enters from the Kerala in India. Kerala का एरिया यही वाला एरिया है हमारा. So it is the reason that most of the rainfall is received by the Western Ghats, and as comparison to the Western Ghats, Eastern Ghats इतनी ज़्यादा rainfall receive नहीं करते हैं. Right, this is because these ghats obstruct the moisture laden winds coming from the Arabian Sea, causing the winds to rise and shed their moisture in the form of heavy rains. Right, इसीलिए वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा रेन होती है, एंड वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टिन्यूअस एंड दे आर पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स. राइट, दे आर बेसिकली प्लेट्यूज ओनली. आफ्टर दैट वेस्टर्न घाट्स के बाद हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की. एंड वेस्टर्न घाट्स ही ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं. दे रिसीव हाई
रेनफॉल। ठीक है, नाउ ईस्टर्न घाट्स। जो ईस्टर्न घाट्स हैं हमारे, ईस्टर्न घाट्स डोंट receive much rainfall and they are not regular like the western घाट्स। वेस्टर्न घाट्स तो हमने कहा बिल्कुल कोस्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल है, ईस्टर्न घाट्स ऐसा नहीं है। Unlike the western ghats, eastern ghats are irregular and not as continuous. They are broken in sections and many rivers which flow into the Bay of Bengal. Right? वो जो है sections में टूटे हुए हैं because of the many rivers that flow into the Bay of Bengal. इस वजह से वो जो है टूट गए हैं। Right? They are not continuous. Their elevation is less and they have an average height of around 600 meters, right? जो हमारे वेस्टर्न घाट्स थे उनकी हाइट थी 900 to 1600 meters, ये उसकी एवरेज हाइट थी। ऑन दी अदर हैंड ईस्टर्न घाट्स की कितनी हाइट है? 600 meters ओनली, ये उसकी हाईएस्ट हाइट है, ये ज़्यादा हाई नहीं है। ठीक है, they are broken into sections, their elevation is less and they have an average height of around 600 meters. The eastern ghats stretch from the महानदी वैली टू द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। राइट, यहां से महानदी वैली जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द महानदी वैली दे स्ट्रेच टू द ईस्टर्न हिल्स इन द साउथ। महानदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड महानदी इज द हाईएस्ट पीक। राइट, नेक्स्ट लेट अस मूविंग फॉरवर्ड टू द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं। कोस्टल प्लेन्स वही हैं, वो एरिया जो हमारे सी से टच होते हैं, वेदर इट इज द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑन द वेस्टर्न साइड मीटिंग विद द अरेबियन सी और वेदर इट इज द ईस्टर्न कोस्ट लाइन मीटिंग विद द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये हमारे जो है कोस्ट लाइंस हैं। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द कोस्ट लाइंस नाउ। देखिए, द कोस्टल प्लेन्स, let us understand. The peninsular plateau in India has a plain stretches of narrow coastal strips that run along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. Normal सी सिचुएशन है कि यहाँ पे वेस्टर्न साइड पे हमारी अरेबियन सी से मिलती हुई एक वेस्टर्न कोस्ट लाइन है और ईस्टर्न साइड से मिलती हुई एक ईस्टर्न कोस्ट लाइन है। राइट, Western coastal plains. The western coastal plains are a narrow strip of plain land that lies between the Western Ghats and the Arabian Sea. Western Ghats मैंने बताया parallel हैं हमारे उसके and the western coastline lies between the Arabian Sea and the Western Ghats. Right. The northern part of the coast from northern Maharashtra to Goa is called the Konkan region. Right. The area from Maharashtra टू गोवा, महाराष्ट्र से गोवा का जो रीजन है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ कोंकण। ठीक है, KONKAN, KONKAN। ऑन द अदर हैंड द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज मालाबार कोस्ट, मीन्स फ्रॉम गोवा टू केरला। फ्रॉम गोवा टू केरला का जो स्ट्रेच है उसको हम लोग कहते हैं मालाबार। ठीक है, एक बार आपको मैप के थ्रू थोड़ा समझा दे रहा, थोड़ा बड़ा बन के आपको समझ में आएगा। राइट, ये हमारा ऊपर का गुजरात का एरिया हो जाता है। गुजरात के एरिया के नीचे से हमारा जो है मुंबई बिल्कुल जुड़ा हुआ है। राइट, फ्रॉम मुंबई हियर इट इज गोवा। सो मुंबई से गोवा का जो पार्ट है, मुंबई से जो गोवा का पार्ट है, मुंबई से गोवा का पार्ट हमारा क्या है, वो कहलाता है कोंकण। एंड द पार्ट फ्रॉम गोवा टू केरला, जो नीचे का पूरा पार्ट है, वो कहलाता है हमारा मालाबार। राइट, सो इट इज मुंबई, इट इज ये जो पॉइंट है दैट इज गोवा एंड मालाबार जो कहां पे खत्म होता है, हमारे केरला पे। राइट, सो दिस इज द ज्योग्राफिकल सिचुएशन, दिस इज द ज्योग्राफिकल पोजीशन। राइट, आफ्टर दैट
देयर आर मैनी पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट, राइट। नेक्स्ट इज अवर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कि हमारे ईस्टर्न साइड पे कौन कौन से कोस्टल प्लेन्स हैं, उनकी क्या खासियत है, फीचर्स हैं, राइट। सो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड दैट रन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, राइट। दे आर द स्ट्रिप ऑफ लैंड रनिंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल है हमारा। सो बे ऑफ बंगाल के पास जो कोस्टल लैंड है दैट इज अवर ईस्टर्न कोस्टल लाइन, राइट। This strip is wider than the Western Ghats. In the northern parts, it is called the Northern Caracas, while in the southern part, it is known as the Coromandel Coast. Right? ये northern, ये जो हमारा southern part है, इसमें इसको क्या कहलाते हैं? ये it is called as Coromandel Coast. And the eastern coastline is wider. Right? हमारी जो eastern coastline है वो वाइडर है, और जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट लाइन है वो क्या है? नैरो है, ठीक है। Rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri from deltas on to this coast. The coastal deltaic plains have rich fertile soil and form islands and water bodies. Chilka Lake is one of such brackish water body in the Odisha. It has a house of a bird sanctuary, मतलब वहाँ पे बहुत सारे bird sanctuaries के houses हैं, right? So this was our eastern coastal plains. So students, we will meet in the next video, जिसके अंदर हम लोग island territory जो लक्षद्वीप और अंडमान हैं उनके बारे में बात करेंगे. So we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.